First of all, what is synopsis and what is research paper? So synopsis. So most of the people among you might be knowing what is synopsis right now, because mostly our postgraduate uh, postgraduate residents are here. So about synopsis, it is a summary. It is a summary of the work you will conduct in the future. So what you do here is you have to write down all your plan, what you want to do, how you want to do it, when you want to do, on what kind of population you want to do it, and in which settings you want to do it, and the duration and all that thing, all those things. Okay. So synopsis is basically the summary of the work you will conduct in the future. While research paper or manuscript or article, these are the interchangeable terms, and the work, and it is what the work you have already done or conducted. ठीक है. Synopsis जो भी आपने किया नहीं है आपने करना है, और रिसर्च पेपर इज जो आप कर चुके हैं. So for that simple reasons, synopsis, right, you have to write everything in the future sentences. आप ऐसे लिखेंगे कि we will enroll 30 patients in this group, we will do this, we will add this drug, we will do this procedure. तो ये आप सारा will और future में करेंगे. ठीक है. और रिसर्च पेपर मैन्युस्क्रिप्ट में क्या होगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन द वर्क, आप सब कुछ कर चुके हैं, तो अब आप इसको पास्ट सेंटेंस में लिखेंगे, पास्ट टेंसेस यूज करेंगे कि हमने क्या किया. We have done this, we have enrolled 30 patients, 40 patients, we have done we have given group A this drug, group B this drug. तो आपने कर लिया, अब आप उसको मेंशन कर रहे हैं. ठीक है. सिनॉप्सिस और रिसर्च पेपर में आई होप आप लोगों को बड़ा सिंपल फर्क है, समझ आ गया होगा. और वैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉज लूंगी. अब आपने, मैंने आज ग्रुप में शेयर किया था कि सीपीएसपी ने एक नया रूल पास किया है कि अब 2025 से ऑनवर्ड जो एफसीपीएस के पीजीज होंगे वो लोग आर्टिकल लिखेंगे. तो all the best all to all the PGs of FCPS then. Now, research question. अब हमारा यहाँ से काम शुरू होता है. So what is a research question? So it is a very important thing to start a research. You should have a genuine question in your mind. It's something unusual or unique and that pops up or comes into your mind. अब बात यह है कि आपके जहन में सवाल आएगा कैसे. तो इसके तीन तरीके हो सकते हैं. Either you have to keenly observe your patients and the procedures and look for untoward or unusual effects or findings. ठीक? Secondly, or someone like your some colleague or some senior share with you some very unique or unusual findings regarding a patient or a drug or a procedure. ठीक? और thirdly क्या हो सकता है कि very important that you have gone through some medical literature and you came across some very different or unusual or unique findings. तो इन चीजों से, इन डिफरेंट सिचुएशन से क्या है कि आपके जहन में डिफरेंट सवाल और क्वेश्चंस पैदा होंगे, तो आपने उन पे काम शुरू करना है. ठीक है. इस तरह से आप रिसर्च शुरू कर सकते हैं. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आपके जहन में सवाल आ गया, अब आपने क्या करना है. अब आप इसकी हम कुछ मिसाल लेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, क्योंकि हमारे पास आज यहाँ पर एनेस्थीसिया के लोग भी हैं ज्यादा, और इसमें हमारे पास गायनी ऑप्स के भी हैं, ऑन्कोलॉजी से भी हैं. तो आई विल ट्राई टू गिव एग्जांपल्स a bit like relevant to the subject. Okay. अच्छा, अब हम चलते हैं पहली 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 एग्जांपल की तरफ. अब सबसे पहले है, लेट्स से कि आप एनेस्थीसिया के रेजिडेंट हैं, आप एनेस्थीसिया में काम कर रहे हैं और आपने एक अनयूजुअल फाइंडिंग पिक की है. यू आर वर्किंग इन आईसीयू and you have observed that for at least for last 3 months some of the patients has a longer ICU stay and longer ventilation time than the usual.
ठीक हो गया? तो यहाँ आपके जहन में सवाल उठेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे पेशेंट पहले या नॉर्मली कुछ पेशेंट जो हैं वो जल्दी वीन ऑफ हो रहे हैं, वेंट से ऑफ हो रहे हैं और आईसीयू से जा रहे हैं, लेकिन कुछ पेशेंट दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे आप रैशनली सोचेंगे, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग रैशनली अबाउट इट। अब रीजनिंग करेंगे, ठीक है, यू स्टार्ट सीकिंग द आंसर्स। अब आंसर्स कहाँ से आएंगे आपके पास? तो आइदर you just you will discuss this issue with your seniors, or you can read this issue from the books or literature, or you can make your own observations. अब ऑब्जर्वेशन के बाद तो ये है पहला स्टेप, ठीक है। सबसे पहले ये कि आपके जहन में सवाल पैदा होता है, ये पहला स्टेप है। दूसरा ये कि आप इससे जो यू आर मेकिंग ऑब्जर्वेशन एंड यूर क्वेश्चनिंग। तो अब हम इसको लेके आगे चलते हैं। सेकंड स्टेप पे आता है हाइपोथेसिस, एजम्पशन। हाइपोथेसिस क्या है? इट इज एजम्पशन, यूर इज्यूमिंग, यूर सपोजिंग समथिंग, ठीक है। एक साइंटिफिक गेस्ट आप कह लें, गेस नॉट गेस्ट, इट्स अ साइंटिफिक गेस। इसमें क्या है कि यू विल ट्राई टू गेट अ रीजन फॉर दिस सिचुएशन। you are for example, you will be looking for different risk factors or drugs that may be causing the longer ventilation or ICU stay, ठीक है। आप क्या करेंगे? you will be started supposing that, you will assume that either it's maybe opioids they are causing this, or maybe the old age of patient is a reason, or maybe the neurosurgical procedures are causing causing longer ICU stay। ठीक हो गया? आपके जहन में ये डिफरेंट आइडियाज आ रहे हैं। तो अब इसमें से हम किसी एक को अडॉप्ट कर लेते हैं इसमें से, ठीक है। चलिए हम इसमें से ओपियोइड्स ले लेते हैं। अब हाइपोथेसिस आपने ज्यूम ये किया कि इसमें से ओपियोइड्स की वजह से पेशेंट का आईसीयू में स्टे लॉन्ग हो रहा है और वेंटिलेटर पे वो ज्यादा देर तक है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे? आप ये भी एज्यूम करते हैं कि मे बी इफ आई ट्राई मिडाजोलाम, तो मिडाजोलाम मे बी हैविंग अ बेटर आउटकम। तो ठीक है, ये आपका हाइपोथेसिस हो गया। अब हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव किस लिए है या आप क्या करना चाहते हैं? इट इज टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस, टू कंफर्म योर हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसके लिए आप जब आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं तो आपको उसको कंफर्म भी तो करना है ना। आप सिर्फ उस अपनी सुपोजिशन पे नहीं चल सकते कि ठीक है मेरा ख्याल है कि ऐसा है। आपको अपने ख्याल को टेस्ट भी करना है, कंफर्म करना है कि आइदर यू आर राइट और नॉट, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप एक अपना गोल सेट करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि आई वांट टू कंडक्ट अ स्टडी। अब हाउ एंड व्हाट यू वांट टू कंडक्ट अ स्टडी, व्हाट काइंड ऑफ स्टडी? तो आप बोलेंगे कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि आई वांट टू कंडक्ट अ स्टडी टू कंपेयर द एफिकेसी ऑफ ड्रग ए एंड ड्रग बी इन न्यूरोसर्जिकल आईसीयू पेशेंट्स, ठीक है। आपको यहां तक समझ आ गया? आपने एक चीज फर्स्ट की, इज्यूम की, and now you have to confirm it by conducting a study and conducting a research, ठीक है। अब हम इस पे बाद में जाएंगे कि वो किस टाइप की स्टडी होगी, वो इसके बाद आएगा। तो हाइपोथेसिस था, ऑब्जेक्टिव था कि आप क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं। एंड रैशनल क्या होता है? रैशनल वो है जो सारे बच्चों को बहुत परेशान करता है, वो कहते हैं कि रैशनल में क्या लिखें। तो रैशनल क्या होता है? रैशनल होता है आप क्यों करना चाहते हैं स्टडी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है कि आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू। रैशनल होगा कि व्हाई यू वांट टू डू, रीजन क्या है इसकी, क्या रीजन है इसके पीछे। तो रीजन में ये है कि आपको तीन चीजें इसमें आएंगी। एक तो है कि व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अब आप ये बताएं कि आईसीयू में अगर एक पेशेंट का लंबा स्टे हो रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम है? मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम इज देयर बिकॉज अ लॉन्गर आईसीयू स्टे और पेशेंट का वेंटिलेटर पे ज्यादा देर तक रहना, इट कैन लीड टू हायर मॉर्बिडिटी रेट्स, ठीक है। और दूसरा, आईसीयू के ऊपर बर्डन भी आ रहा है, कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम इज देयर, तो पहली चीज होगी रैशनल में, ठीक है। दूसरी चीज है व्हाट वाज लैकिंग इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। अब आपने इसको डेटा सर्च किया, सॉरी आपने इसको लिटरेचर सर्च किया, बुक्स में देखा, ऑनलाइन सर्च किया, आपको आपको इसके बारे में कोई खास
आपको कोई खास इसके बारे में स्टडीज नहीं मिली, ठीक है। आप कहते हैं कि हर जगह ओपियोइड्स को फेवर किया हुआ है, लेकिन हमारे तो पेशेंट ओपियोइड से बहुत लंबे हो रहे हैं, बेड पे बहुत उनका स्टे बहुत लंबा हो रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो मैं एक स्टडी करता हूँ, आपकी स्टडी से क्या होगा, इट विल एड अप टू द एग्जिस्टिंग मेडिकल नॉलेज। पहला फायदा ये है कि आप जो स्टडी करेंगे जेन्युइनली और ईमानदारी से और उसके रिजल्ट्स आएंगे तो उसका एग्जिस्टिंग मेडिकल नॉलेज में इजाफा होगा। और दूसरा क्या होगा कि इससे आपके पेशेंट्स को फायदा होगा, जैसे मॉर्बिडिटी कम होगी, पेशेंट का आईसीयू का स्टे कम हो जाएगा, वेंटिलेटर पे ड्यूरेशन कम हो सकती है उनकी, ठीक है। तो ये हमने एक मिसाल ली है, एक 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 एग्जाम्पल ली है जो कि एनेस्थीसिया के लोगों के लिए। हमारे पास इसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी और ऑब्स्टेट्रिशियन है, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसको फर्दर क्लेरिफाई करने के लिए, ठीक है। अब आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप ऑब्स्टेट्रिशियन हैं और आप ओपीडी में हैं या आप थिएटर में काम कर रही हैं, यू हैव ऑब्जर्व्ड अ डिले वुंड हीलिंग इन द पोस्ट सिजेरियन सेक्शन पेशेंट्स। ठीक हो गया, एक ये कॉमन फाइंडिंग है, अक्सर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में तो होती है। तो अब आपके जहन में आता है कि हम मेरे पेशेंट्स की वुंड हीलिंग जो है डिले क्यों हो रही है। अब आप इस पे रैशनल थिंकिंग शुरू करती हैं और आप डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ आपके जहन में आते हैं, जैसे कि आप सपोज करते हैं कि मे बी इट्स ड्यू टू एनीमिया और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, फैट कंटेंट ऑफ द पेशेंट, ओबेसिटी है, डायबिटीज की वजह से हो रहा है, और या एंटीबायोटिक कवरेज अच्छी नहीं दे रहे हम, या एंटीबायोटिक हम रिलेटेड टू द सर्जिकल वूंड हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो नाउ यू कम अप विद डिफरेंट आइडियाज ऑफ यूजिंग सम अदर ड्रग्स। आप कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं इस पे ड्रग ए यूज करूं और मे बी ड्रग ए की एफिकेसी ड्रग बी से ज्यादा हो और मेरे पेशेंट की वूंड हीलिंग अच्छी हो जाए। तो ये आपका हाइपोथेसिस है। आप सोचते हैं कि हम जो ऑलरेडी ड्रग दे रहे हैं ड्रग ए, इट वाज नॉट गुड और इट वाज नॉट एज इफेक्टिव, सो आई शुड ऐड सम अदर ड्रग। तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं किसकी एफिकेसी अच्छी है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका हाइपोथेसिस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, सो टू टेस्ट और कंफर्म योर हाइपोथेसिस यू विल सेट अ गोल एंड यू विल से आई विल कंडक्ट अ स्टडी to compare the efficacy of drug A and drug B in the wound healing in post-operative patients in फ्लांस सेटल। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपका आपका ऑब्जेक्टिव। और आपका रैशनल भी वही होगा जो एनेस्थीसिया का आईसीयू के लॉन्ग स्टे का था, कि मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम इज देयर, पेशेंट्स की वुंड हीलिंग नहीं हो रही है, उसकी वजह से एक तो उनकी मिजरी में इजाफा हो रहा है, उनका हॉस्पिटल में स्टे प्रोलॉन्ग हो रहा है, कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मॉर्बिडिटी जो है इंक्रीज हो रही है। और एग्जिस्टिंग लिटरेचर में आपने देखा देयर इज अ गैप, आपको कोई खास चीज नहीं मिल रही है जिससे आप कोई हेल्प लें। उसके बाद आपकी स्टडी करने से जो रिजल्ट्स आते हैं, मे बी ड्रग भी ज्यादा अच्छी हो, और हो सकता है कि ड्रग भी उतनी अच्छी ना हो जितना आपने सोचा था, लेकिन एटलीस्ट उससे कुछ अंदाजा हो जाएगा आपको कि वेयर यू स्टैंड, या आपका आइडिया कितना करेक्ट था, आपका हाइपोथेसिस कितना करेक्ट था। तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल थी जिससे मैं आपको हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव और रैशनल का डिफरेंस आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, मेथोडोलॉजी। अब मेथोडोलॉजी में हमारे पास सबसे पहले है स्टडी डिजाइन। अब ऑब्जेक्टिव और स्टडी डिजाइन आपस में, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। आ, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है कि आपका स्टडी डिजाइन क्लियर हो। आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपने असल में करना क्या है या किस तरह से करना है। आप इंटरवेंशन करना चाहते हैं, ठीक है, आपको इंटरवेंशन करना चाहते हैं, मतलब आपको ड्रग देना चाहते हैं, दैट इज इंटरवेंशन, ठीक है। आप एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिस्टम में, या फिर आप सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आप ऑब्जर्वेशन स्टडी करना चाहते हैं। आप एसोसिएशन देखना चाहते हैं कि वुंड हीलिंग का अनीमिया के साथ क्या ताल्लुक है, तो आप एसोसिएशन देखना चाहते हैं, या आप वुंड हीलिंग के लिए ड्रग यूज करना चाहते हैं, कोई आपको कंपेयर करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर सारा स्टडी डिजाइन आपका बेस करता है, और आपका ऑब्जेक्टिव जो है स्टडी डिजाइन के ऊपर बेस करता है, ठीक है। इसके लिए हमें स्टडी डिजाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। हम चलते हैं अपने स्टडी डिजाइन की तरफ। तो ये एक बहुत अच्छी स्लाइड है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अच्छा, अब इसमें ये है जी, अब यहाँ पर है सबसे पहले कि इंटरवेंशन
उसमें आपको इंटरवेंशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर इंटरवेंशन कर रहे हैं यानी आप कोई ड्रग दे रहे हैं या आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, आप एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिस्टम में, तो यस, ओके, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। और अगर आप कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे, देयर इज नो इंटरवेंशन, देन इट विल बी ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ठीक हो गया? पहले तो डिफरेंस ये हो गया। अब आगे ऑब्जर्वेशन स्टडी पे आते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी में फिर फर्दर दो टाइप्स हैं। अगर आप सिंपल एक सिंगल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को लेके स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम उसमें कहेंगे कि ये इट्स अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। और अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं लेकिन आप दो ग्रुप्स के बीच में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे एनालिटिकल स्टडी। ठीक है? अब डिस्क्रिप्टिव स्टडीज के नाम से ही जाहिर है, डिस्क्रिप्टिव मींस कि इट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन। इसमें यूजली आप अपनी तरफ से कोई ओपिनियन नहीं देते, यूजली आप इसमें सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है? यानी इसमें आप अपनी तरफ से कोई जजमेंट पास नहीं कर रहे होते, आप अपनी ओपिनियन नहीं दे रहे होते, जो होता है ना उसको एज सच बता देते हैं, अपनी तरफ से कुछ बीच में मिलाते ही नहीं है, कुछ शामिल नहीं करते, बस जो आपने देखा होता है उसको जूं का त्यों बता देते हैं। ठीक है? इट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी। ठीक हो गया? इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, केस रिपोर्ट है, केस सीरीज और क्रॉस सेक्शन सर्वेस है। ठीक है? दूसरी तरफ आते हैं एनालिटिकल स्टडी। अब इसके नाम से जाहिर है एनालिटिकल, तो इसमें हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस क्या है? टू लुक फॉर एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम। अब डिस्क्रिप्टिव, और इसको मैं आगे आपको मिसाल से बताऊंगी, या अभी हम अपनी इसी मिसाल को लेके चलते हैं ताकि आपको यहीं पे इसकी समझ आ जाए, फिर आगे भी आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आप देखें, अगर हम अपनी पिछली मिसाल को लें, हमने गायनी के पेशेंट की मिसाल ली थी। लेट से हमने कहा था कि उसमें वुंड हीलिंग डिले हो रही है, ठीक है, और एनीमिया है और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम हो सकता है, या एंटीबायोटिक्स वगैरह ये वो। हमने इसको सिर्फ डिस्क्राइब किया, हमने बताया कि हमारे पास ओपीडी में 30 पेशेंट आए, जिसमें से 20 पेशेंट्स की वुंड हीलिंग डिले थी, 10 पेशेंट्स की वुंड हीलिंग अच्छी थी, उनमें इतनों को एनीमिया था, इतनों को ये मसला था, और इतने पेशेंट ओबीज थे, इतनों को डायबिटीज थी। ठीक है? तो ये हो गई डिस्क्रिप्टिव टाइप। उसी मिसाल को लेकर अगर हम उसमें एनालिटिकल स्टडी बनाएं तो हम कहेंगे कि हमारा ख्याल है, आप कहेंगे कि हमारा ख्याल है कि एनीमिया, ठीक है, आप कहेंगे कि एनीमिया जो है ये एसोसिएटेड है डिले, ये एसोसिएटेड है पुअर वुंड हीलिंग के साथ। या आप कहते हैं कि ओबेसिटी जो है ये एसोसिएटेड है, ये एक रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से पेशेंट की पुअर वुंड हीलिंग हो रही है। ठीक हो गया? तो ये आप एसोसिएशन देख रहे हैं, और आप दो ग्रुप्स में देखेंगे कि कुछ की वुंड हीलिंग अच्छी है और कुछ की वुंड हीलिंग अच्छी नहीं थी। ठीक है? उसमें अच्छी मतलब उसका वुंड हील था और दूसरे का वुंड हील नहीं था, उसमें पस पड़ गई थी और ये सारा कुछ। ठीक है? तो उससे क्या है, तो आप उन दोनों के बीच में एसोसिएशन बनाएंगे, ठीक है, इस्टेब्लिश करेंगे। इनको कहते हैं एनालिटिकल स्टडीज। आई होप आप लोगों को इस दोनों का फर्क समझ आ गया होगा। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें कोहॉर्ट स्टडी है, केस कंट्रोल है और क्रॉस सेक्शन स्टडीज है। इनको हम आगे अभी थोड़ा डिटेल से देखेंगे। जी, इन बॉक्स में क्या कह रहे हैं? एडवर्ड पॉइंट यूसुफ। अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी हम आज रिसर्च मेथोडोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद हम इसको पहले फिनिश करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को रिसर्च डिजाइन्स का, स्टडी डिजाइन्स का इल्म नहीं है। तो ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बहुत जल्दी जो है इस्तेमाल करेंगे, पहले हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर लें। ठीक है? ओके, अच्छा, ये था आपका ऑब्जर्वेशन स्टडी। अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी की तरफ। आपने इंटरवेंशन की, ओके, ठीक है, अगर आप उसमें रेंडमाइजेशन भी करेंगे तो इसको हम रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं। और अगर इसमें रेंडमाइजेशन नहीं हो रही, रैंडमली एलोकेट नहीं कर रहे आप पेशेंट्स को, या रैंडम सैम्पलिंग नहीं कर रहे, तो इसको हम नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं। ठीक है? अभी इसकी भी डिटेल आगे आएगी। तो इन शॉर्ट ये आपका टोटल, ये सारे का सारा ये स्टडी डिजाइन है, डिफरेंट स्टडी डिजाइन है, ये ऑब्जर्वेशनल है और ये एक्सपेरिमेंटल है। अच्छा, अब यहाँ पे एक अहम बात ये है कि जो आप में से जो पीजीआर्स, यूएचएस के पीजीआर्स हैं, जो एमडी कर रहे हैं या
या फिर एमएस एनेस्थीसिया कर रहे हैं या जो भी, ठीक है, आप लोगों का जो यूएचएस की रिक्वायरमेट है वो आरसीटीज है। आरसीटीज है या कॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है, ठीक है, नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, जिसको हम कॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी इस भी इसकी एक टाइप है। तो आप लोगों के लिए ये है यूएचएस वालों के लिए। लेकिन जो एफसीपीएस कर रहे हैं, या हमारे पास यहाँ पे फैकल्टी के लोग भी हैं कुछ, और जिसमें प्रोफेसर और एसोसिएट भी हैं, एपी हैं हमारे पास, तो आप लोग इसमें से ये स्टडी कर सकते हैं, केस को हार्ड स्टडी कर सकते हैं बहुत। ये आरसीटी से तो नीचे मेरिट पे है, लेकिन इट्स नॉट दैट बैड। और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं, ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आरसीटी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उस पर भी हम आएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करेंगे, आप आरसीटी भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब at the top of hierarchy of the medical research systematic reviews जो है वो टॉप पर होते हैं। आरसीटीज रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल दूसरे नंबर पर हैं, और हमारे आरसीटीज बहुत ज्यादा तो नहीं होते, लेकिन एनीवेज इसके बाद तीसरे नंबर पे कॉज एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल स्टडीज भी एट द टॉप ऑफ हियरार्की है। उसके बाद मेरिट पे दूसरे नंबर पर आती हैं ऑब्जर्वेशन स्टडीज, सॉरी, जिसमें आपके पास क्रॉस सेक्शनल या कोहार्ट स्टडीज है, ठीक है, उसमें कोहार्ट स्टडीज की भी काफी काफी जो है वो इम्पोर्टेंस है। एनीवेज, तो अब हम आते हैं अपने पहले स्टेप पे। अच्छा, ऑब्जर्वेशन स्टडीज में अब सबसे पहले हमारे हमने कहा था ऑब्जर्वेशन स्टडीज में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है और हमारे पास एनालिटिकल है। तो अब डिस्क्रिप्टिव को थोड़ा सा हम करते हैं। ये आपकी कॉन्फ्रेंसेस में, खासतौर से केस रिपोर्ट और केस सीरीज आपकी कॉन्फ्रेंसेस में बहुत ज्यादा काम आती हैं। मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस जब होती हैं तो वहाँ पे पीजीआर्स को बहुत इनकरेज किया जाता है कि वो केस रिपोर्ट करें। अब केस रिपोर्ट क्या था, अभी आप पिछली मिसाल से देखें, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। अब हम आईसीयू की मिसाल की तरफ आते हैं। आप देखते हैं कि आपके पेशेंट का आईसीयू में स्टे प्रोलॉन्ग है और वेंटिलेटर पे उसकी ड्यूरेशन ज्यादा हो गई है, वीन ऑफ नहीं हो रहा, एक्सटुबेट नहीं हो रहा। तो आपके लिए ये एक अनयूजुअल फाइंडिंग है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, आप इसको केस रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें आप उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी सारी अ, उसके साथ जो सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, उसकी जनरल जनरल करेक्टरिस्टिक्स होंगी उसकी, कि एज है, बॉडी वेट है, उसकी कोमॉर्बिड्स हैं वगैरह वगैरह, और उसको ट्रीटमेंट क्या मिल रहा है, आपके सारा कुछ, और उसमें अनयूजुअल फाइंडिंग क्या है कि उसका प्रोलॉन्ग स्टे हो गया ड्यू टू फ्ला रीजन, जो भी रीजन आपके माइंड में आती है, ठीक है। तो आप इसको केस रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा पेशेंट हो तो हम इसको केस सीरीज कहते हैं, अप टिल 30 तक। और क्रॉस सेक्शनल सर्वेज होते हैं, ये इसके बारे में भी मैं जो है अभी आपको थोड़ा बताते हैं, ठीक है। अब केस रिपोर्ट करने के डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। एक तो यही है कि अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, एक डिफरेंट फाइंडिंग है, पहले ऐसा नहीं था, या अब शुरू हुआ है, या मे बी आपने अब नोटिस किया हो, पहले होता हो। सेकंड, एडवर्स थेरेपी रिएक्शंस, मतलब लेट्स से अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि ओपियोइड्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तीसरा, अनयूजुअल कॉम्बो ऑफ सिचुएशंस कॉजिंग कंफ्यूजन, मसलन ये भी हो सकता है कि ओल्ड एज में जो रिकमेंडेशन हो ओपियोइड्स नहीं देने, लेकिन आप दे रहे हैं, या न्यूरोसर्जिकल पेशेंट है, ओल्ड एज का कॉम्बिनेशन और साथ ओपियोइड्स दे रहे हैं, तो दैट इज अ अनयूजुअल कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से आपके पेशेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में यू कैन केस रिपोर्ट इट। लेकिन केस रिपोर्ट में और भी डिफरेंट चीजें होती हैं, बड़ी अनयूजुअल डिजीजेस होती हैं, तो ये तो मैंने एक आपको जस्ट समझाने के लिए एक जैसे एग्जांपल दी है, ठीक है। केस सीरीज का मैंने आपको बताया कि अगर 3 से ज्यादा केस होंगे तो फिर आप उसको केस सीरीज कहते हैं, ठीक है। आप उसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स में आपने ये अनयूजुअल फाइंडिंग देखी है। अब डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल सर्वे क्या होता है, ठीक है। अब ये था, ये वाला जो नीचे वाला था, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल, ये सर्वे बेस्ड होते हैं, ये कम्युनिटी बेस्ड सर्वेज होते हैं, ठीक है। इसमें हम बेसिकली प्रेवलेंस देखते हैं। ये भी उसी तरह आप डिस्क्राइब करते हैं, आप एक कम्युनिटी का सर्वे करते हैं, जिसमें आप लेट्स से कि आप देखना चाहते हैं कि उसमें डायबिटीज जो है कितने लोगों को है, ठीक है। आप एक क्वेश्चनियर जो है फ्लोट करते हैं, या आप इंटरव्यू करते हैं, या आप
एक क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं और उसको फ्लोट करते हैं, और उससे आप सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन को ऐसे डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल सर्वे। ये यूजली डिजीजेस या कंडीशंस या सिचुएशंस की प्रेवलेंस देखने के लिए होता है यूज। और तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद नेक्स्ट है एनालिटिकल स्टडी। अब एनालिटिकल स्टडी में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ये हम टू लुक फॉर द एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स को हार्ट स्टडी, केस कंट्रोल एंड क्रॉस सेक्शन, वी विल टच देम वन बाय वन। तो सबसे पहले हम आते हैं, अच्छा, कोहॉर्ट स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडी। मैंने इन दोनों को इस तरह इसलिए लिखा है कि आप इन दोनों को जब कंपेयर करके पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको ये फिर कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। और इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल भी है मेरे पास, अभी हम वो भी उसको करते हैं यूज। ओके, कोहॉर्ट स्टडी एंड केस कंट्रोल, ठीक है। कोहॉर्ट स्टडी जैसे कि साथ लिखा हुआ है, ये आप फ्यूचर में स्टडी करते हैं, फ्यूचर की स्टडी है, ठीक है। और केस कंट्रोल इज पास्ट स्टडी। अब पास्ट में क्या, अभी हम इसको देखते हैं। फ्यूचर का मतलब ये है कि एक्सपोयर से आउटकम की तरफ जाना है। एक्सपोयर मतलब किसी रिस्क फैक्टर का एक्सपोयर। हम आसान मिसाल लेते हैं, लेट्स से कि स्मोकिंग। तो आप स्मोकर्स को लेते हैं और आप देखते हैं कि उनमें अगले 5 सालों या 10 सालों में उनमें लंग्स ये डेवलप होता है या नहीं, या लेट से उनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज उनमें डेवलप हो रही है या नहीं, हाइपरटेंशन हो रही है या नहीं, या जो भी आप आउटकम स्मोकिंग का आउटकम आप देखना चाहते हैं। केस कंट्रोल में क्या है कि आप इसमें आउटकम से एक्सपोयर की तरफ जाते हैं, यानी आपके पास आज कोरोनरी आर्टरी के डिजीज के पेशेंट हैं, आपके पास हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, या आपके पास इस्कीमिक हार्ट के पेशेंट हैं, सीए लंग के पेशेंट हैं। आप उनके पास्ट में जाके उनकी पास्ट हिस्ट्री लेते हैं और उसके रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स कितने थे, ठीक है। तो आप उनका एक्सपोयर पास्ट में जाके चेक करते हैं। इसकी मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल देती हूँ। ये ऐसे है कि एक क्राइम सीन है और उस पे डिटेक्टिव है। अब उसने क्या करना है, यू फॉलो अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डज और डज नॉट लुक सस्पिशियस, ठीक है। अब आप एक डिटेक्टिव है एंड यू हैव टू लुक फॉर द पीपल, यू हैव टू फॉलो अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डज और डज नॉट लुक सस्पिशियस, ठीक। यू सी हु एंड्स अप कमिटिंग द क्राइम, ठीक हो गया। तो इसमें एग्जांपल ये है कि यू फॉलो अ ग्रुप ऑफ पीपल हु स्मोक एंड अ ग्रुप हु डोंट स्मोक एंड यू सी हु डेवलप द लंग कैंसर, ठीक, आसान। अब हम जाते दूसरी तरफ, डिटेक्टिव लुक्स बैक, यू फाइंड पीपल हु कमिटेड द क्राइम एंड दोज हु डिड नॉट कमिट द क्राइम, ठीक है। यानी कुछ को कैंसर है और कुछ को नहीं। यू आस्क देम अबाउट दे डिड व्हाट दे डिड बिफोर द क्राइम, यानी क्राइम के टाइम से पहले वो कहाँ थे। ऐसी ऐसी होती है ना इन्वेस्टिगेशन के, क्राइम के वक्त आप कहाँ थे। और तो यू कंपेयर बोथ द ग्रुप्स। अब इसकी एग्जांपल ये है कि यू फाइंड पीपल विद लंग कैंसर एंड पीपल हु डोंट हैव लंग कैंसर एंड यू आस्क देम इफ दे स्मोक और नॉट, ठीक है। इसके समझ आया आपको। को हार्ट अप आप जाएंगे प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ, एक्सपोयर से आउटकम की तरफ, रिस्क फैक्टर से आउटकम की तरफ, और केस कंट्रोल में आप जाएंगे पास्ट की तरफ, पीछे की तरफ जाएंगे। आउट यानी डिजीज हो चुकी है और आप उसके पीछे रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके साथ एसोसिएशन देख रहे हैं उसकी, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कोहॉर्ट स्टडी में इट्स अ ग्रेट फॉर फिगरिंग आउट इफ समथिंग कॉजेज अ डिजीज, ठीक है। और इसमें आप ज्यादातर इंसिडेंट्स देखते हैं। और केस कंट्रोल स्टडी में इट इज गुड फॉर फाइंडिंग आउट इफ समथिंग इज लिंक्ड टू अ डिजीज, यानी एसोसिएशन देखते हैं। इसमें कॉज देखते हैं, इसमें एसोसिएशन देखते हैं। ये इंसिडेंट्स के लिए होती है और ये प्रेवलेंस के लिए होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इट्स फुली लोडेड स्लाइड। इसमें सारी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी की हुई है और इसमें सारी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, आपको ये कभी भूलेगा नहीं। अच्छा, अब हम इसकी एक और मिसाल लेते हैं, केस कंट्रोल और
और कोहार्ट के बारे में, इसकी एक और मिसालें से आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा ये कि ये क्या होती हैं। A cohort study is like watching a movie from the beginning to the end, and a case control study is like watching the end of a movie first and then trying to figure out what happened at the beginning. ठीक है, तो इसके साथ ही हम केस कंट्रोल और कोहार्ट से इजाजत लेते हैं। वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। सो ये एक और डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि कोहार्ट स्टडी आप प्रेजेंट में है, आपके पास फैक्टर्स हैं यानी कि रिस्क फैक्टर्स हैं, और उनमें अगले 5 साल में 10 साल में उनमें डिजीज हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो आप इनकी कॉज देखते हैं कि इसकी वजह से ये हुई है या नहीं। ठीक, फिर इंसिडेंस देखते हैं। उसके बाद आता है केस कंट्रोल। केस कंट्रोल में क्या था, अब प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डिजीज पेशेंट मौजूद है, सीए लंग के हैं जिनको कुछ को है और कुछ को नहीं है, और आप उनके पास्ट में जाके उनसे उनके रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी बेसिकली ये प्रेजेंट, ये सिर्फ ये ये प्रेजेंट में रह के करते, लाइक इट्स अ स्टडी विच यू हैव टू परफॉर्म इन द प्रेजेंट टाइम। आप इसको पास्ट में और फ्यूचर में नहीं करते। डेटा कलेक्टेड एट वन पॉइंट इन टाइम। ठीक है, इसकी आप एक सिंपल मिसाल है कि इमेजिन यू टेक यू यू टेक अ स्नैपशॉट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब इसमें क्या है कि देखिए आपके पास एक क्राउड है, आपने उसकी तस्वीर ली है, 10 लोगों का ग्रुप है और वो खड़े हैं। तो आपको नहीं पता इसका बैकग्राउंड क्या है, पीछे क्या हुआ, आपको नहीं पता है फ्यूचर में इनके साथ क्या होगा, ये क्या करने जा रहे हैं, विदाउट स्टैंडिंग देयर। तो आप उसका स्नैपशॉट ले लेंगे एट द पॉइंट इन टाइम। इसकी हम एग्जांपल लेंगे, जैसे आप सर्वे करते हैं, आप सर्वे करते हैं और ये भी बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, सर्वेस होते हैं, और ये डिजीज की प्रेवलेंस देखने के लिए होते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप बैंकर्स और नॉन बैंकर्स में या डॉक्टर्स और नॉन डॉक्टर्स में एंजाइटी और डिप्रेशन का आप लेवल देखना चाहते हैं। आप देखते हैं कि इनमें से ज्यादा एंजाइटी किसको है, डिप्रेशन के पेशेंट कौन है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ज्यादा है, डॉक्टर्स ज्यादा है मेडिकल में, या बैंकर्स हैं। ठीक है, तो आप एक सर्वे करेंगे तो इसमें ये होता है कि आप दो ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे। A snapshot in time, it measures the prevalence of a disease or condition in a population at a specific point in time as well as risk factor exposure association with outcome। यानी कि अच्छा दूसरा ये भी है कि आप देख सकते हैं कि आप लेट से आप एक 50 पेशेंट का सर्वे करते हैं और आप उनसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि आप स्मोकिंग करते हैं, यस और नो, और आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, यस और नो। इसका ऐसे भी कर सकते हैं, आप सिंपल पूछ सकते हैं कि आप अल्कोहलिक हैं, यस और नो, और आपको लिवर सिरोसिस है, यस और नो। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन स्टडी में आप आगे पीछे कुछ नहीं जाते, लाइक आप बहुत पास्ट में नहीं जाते, आप फ्यूचर में नहीं जाते, एट द प्रेजेंट जो उस टाइम प्रॉब्लम है जो आपके सामने है उसको आप लेते हैं, उसका डेटा, और आप उसको फिर उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ये है, तो ये इस सारे का एक जो है स्नैपशॉट है। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रॉस सेक्शन स्टडी जैसे मैंने बताया कि ये आप प्रेजेंट में रह के करेंगे। केस कंट्रोल स्टडी आप प्रेजेंट से पास्ट में जाके करते हैं, और कोहार्ट स्टडी आप प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ करते हैं, इसको प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट कहते हैं। ठीक है, चलें अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी की तरफ। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमारे पास होते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड कॉजी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, अब कॉजी एक्सपेरिमेंटल, कॉजी का एक्चुअली मतलब होता है सॉर्ट ऑफ, मतलब सिमिलर टू, नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्टली इन ट्रू सेंस, लेकिन सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल में आपके पास आरसीटीज आते हैं, और जो नॉट ट्रू है, अनट्रू है, उसमें आपके पास कॉजी एक्सपेरिमेंटल आते हैं। ठीक है, इसको भी हम बारी बारी देखते हैं। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ठीक है, अब इसको हम लेते हैं कि आपके पास 20, आपके पास जो है आपके पास यहाँ पे 10
आपके पास 10 पेशेंट्स हैं, आपने फाइव 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 के आपने दो ग्रुप्स बना लिए हैं, या आई थिंक ये 12 है, आपने सिक्स सिक्स के ग्रुप्स बना लिए हैं, रेंडमाइज किया। ये रेंडमाइज कैसे करते हैं अभी हम इस पे आएंगे, ठीक है, ये असल चीज यही है रेंडमाइजेशन। आपने दो ग्रुप्स लिए हैं, आपने सिक्स सिक्स पेशेंट लिए हैं, आपने एक को ड्रग ए दी है, एक को ड्रग बी दी है, और उनका आउटकम देखा है। तो उसमें किसका आउटकम अच्छा था, फिर आप उसके ऊपर अपना अपनी उसके ऊपर जो रिजल्ट्स को फिर आप जो है वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर डिस्क्लोज कर देते हैं। अब देखने में ये बहुत सिंपल है कि ये तो हमने 20 पेशेंट लिए, 25 पेशेंट लिए, हमने दो दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, और एक को ड्रग ए दी, ड्रग बी दी, और काम खत्म। लेकिन ये जो रेंडमाइजेशन है ना, सारा प्रॉब्लम यहाँ पर है। अब हम इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आरसीटी में, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में किन चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इंटरवेंशन। यस, ठीक है, इंटरवेंशन मतलब आपने कोई ड्रग दी, आपने कोई प्रोसीजर किया, ठीक है, तो ये इंटरवेंशन है। या आप कोई नया मेथड यूज करना चाह रहे हैं, तो दैट विल बी इंटरवेंशन। इसमें कंट्रोल ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज, इसमें रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है, इसमें रेंडमाइजेशन करते हैं। अगर रेंडमाइजेशन नहीं है तो फिर ये कॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी, ठीक है। अगर रेंडमाइजेशन नहीं है तो फिर ये कॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी, जो कि आरसीटी की निस्बत थोड़ी आसान होती है। आप इसको, क्योंकि आरसीटी में बहुत सारे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होता है, बहुत सारे एथिकल इश्यूज भी आ जाते हैं इसमें। तो कॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में इस तरह कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो जो लोग आरसीटी नहीं कर सकते दे कैन डू कॉजी एक्सपेरिमेंटल। मेरिट लिस्ट पे ये भी दूसरे तीसरे नंबर पर आती है। अच्छा, आरसीटी के बारे में थोड़ी सी और आपको बता दूं, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं और इसकी वेरिएशंस हैं। सुपीरियोरिटी, नॉन इंफीरियोरिटी और इक्विवेलेंस है। सुपीरियोरिटी का मतलब ये है कि आप कहते हैं कि एक ड्रग दूसरी ड्रग से सुपीरियर है, या एक मेथड दूसरे मेथड से सुपीरियर है। नॉन सॉरी, एक्सक्यूज मी। अच्छा, उसके बाद आता है आपका नॉन इंफीरियोरिटी। नॉन इंफीरियोरिटी में ये है कि आपकी आ, दूसरी ड्रग जो है वो पहली ड्रग से, या ड्रग ए जो है वो ड्रग बी से इंफीरियर नहीं है इतनी, आप कह सकते हैं कि इट्स नॉट दैट बैड, ठीक है। उसके बाद है इक्विवेलेंस। ये नाम से जाहिर है कि दोनों ड्रग्स के इफेक्ट आपस में बराबर है। आरसीटीज में अब जो है ब्लाइंडेड भी होते हैं, अनब्लाइंडेड भी हैं। अब लेटेस्ट जो है उसमें ये है कि अब वो कहते हैं कि आप अपनी इसमें सिंगल ब्लाइंडेड, डबल ब्लाइंडेड, ट्रिपल ब्लाइंडेड की टर्म यूज नहीं करते, आप सिंपल कहते हैं कि ब्लाइंडेड स्टडी है या अनब्लाइंडेड है। तो अगर आपको फर्दर एक्सप्लेन करना पड़े तो आप मेथडोलॉजी में ये एक्सप्लेन करते हैं कि ब्लाइंडिंग का क्या मतलब है, इसमें कौन ब्लाइंड था, ठीक है, आपने ब्लाइंडिंग किसकी की थी। ब्लाइंडिंग का मतलब ये है कि इस सारे जो पार्टिसिपेंट हैं, जो रिसर्चर है, इनमें से इसमें से किसको स्टडी के बारे में, स्टडी के उसको ये मालूम नहीं था कि उसको कौन सी ड्रग दी जा रही है, ठीक है। तो आई इससे ये होता है कि फिर पेशेंट थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि पेशेंट को पता होता है अच्छा मुझे ये ड्रग दी है, नहीं मुझे तो इससे फायदा नहीं हुआ। तो हो सकता है इससे आपके स्टडी के रिजल्ट्स पे असर हो, तो इसलिए ना, इसलिए इसलिए ब्लाइंडिंग करते हैं। उसमें होता है कि आप पेशेंट से कॉन्सेंट तो लेते हैं कि हम आपको ड्रग ए देंगे या ड्रग बी, लेकिन उसको ड्रग देते वक्त नहीं बताते कि कौन सी ड्रग दी है, ठीक हो गया। इसी तरह फिर या फिर आप इसमें जो पेशेंट का डाटा लेने वाला है आपके साथ, आपका जिसने डाटा कलेक्शन करनी है, जिसने पेशेंट को फॉलो अप करना है, पेशेंट को चेक करना है, जाके रिजल्ट्स लेने हैं, आप उसकी ब्लाइंडिंग करते हैं। लाइक उसको नहीं पता होता है कि पेशेंट को ड्रग ए दी थी या ड्रग बी, वो सिर्फ पेशेंट के रिजल्ट्स नोट करता है, डाटा कलेक्ट करता है और आ जाता है, ठीक है। ये होती है ब्लाइंडिंग। अच्छा, फिर इसमें आरसीटी में और भी डिफरेंट टाइप के हैं कि उसमें डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। आप पैरेलल ग्रुप्स ले लें, फिक्टोरियल टाइप और फिर क्रॉस ओवर। पैरेलल में ये है कि टू और मोर ग्रुप्स आप इसमें लेते हैं,
और हर ग्रुप को आपने, ये बड़ा सिंपल है, यूजली हम पैरेलल ही करते हैं, हम पैरेलल आरसीटीज करते हैं, पैरेलल ग्रुप्स लेते हैं इसमें। और उसमें क्या होता है कि हम, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, और हमने ग्रुप ए को ये ड्रग दी और ग्रुप बी को ये ड्रग दी, खत्म। फैक्टोरियल में क्या है कि आप इकट्ठे 2 से 3 इंटरवेंशन स्टार्ट करते हैं और साइमल्टेनियसली करते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा देती हूँ। मसलन अब आप 4 ग्रुप लेंगे, ग्रुप 1, 2, 3, 4, ठीक है। आप इसको ड्रग ए दे रहे हैं, इसको ड्रग बी दे रहे हैं, इसको आप ड्रग ए एंड बी का कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, और इसको आप प्लेसिबो दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक सिंपल सी मिसाल है। यानी कि आप एक ही वक्त में एक ग्रुप के साथ ये करें कि आप उसे मल्टीपल इंटरवेंशन एक साथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, क्रॉस ओवर क्या होता है, ये है कि आप एक ही ग्रुप के पेशेंट हैं, आपने पहले उनको एक ड्रग दी, फिर उसका वॉश आउट टाइम दिया, और उसके बाद आपने उसी ग्रुप को दूसरी ड्रग दी। मसलन आप पेशेंट है, आपने उसको सुबह के टाइम, लेट्स से कि पेशेंट्स हैं, आपने उनको सुबह के टाइम आपने कोई एनाल्जेसिक दिया और उसको वॉश आउट होने दिया, लेट से उसका वॉश आउट टाइम जो है 24 आवर्स है, तो अगले दिन आपने उसको दोबारा, पेन तो हो रहा था तो आपने उसको दूसरी ड्रग दी, कोई और एनाल्जेसिक दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक ही ग्रुप, एक ही पेशेंट के ऊपर आप 2 ड्रग्स यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में टाइम इंटरवल होता है, लेट इट वॉश आउट। ठीक है, ये इस सिचुएशन में होता है जब आपके पास बहुत ज्यादा पेशेंट्स का सैंपल साइज नहीं होता, आपके पास पॉपुलेशन सैंपल साइज इतना बड़ा नहीं होता, और आपके पास बहुत थोड़े पेशेंट होते हैं ड्यू टू सो मेनी रीजंस, तो उस सूरत में आप क्रॉस ओवर स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है रेंडमाइजेशन की टाइप्स होती हैं, सिंपल रेंडमाइजेशन होती है और ब्लॉक रेंडमाइजेशन होती है। लेकिन इसको बताने से पहले हमें करना पड़ेगा, सैम्पलिंग टेक्निक करनी पड़ेगी, जिससे आपको रेंडमाइजेशन की समझ आएगी, फिर मैं आपको ब्लॉक और सिंपल रेंडमाइजेशन का बताऊंगी। ठीक है जी, यहाँ तक सबको समझ आ गया? आप लोगों के जो भी, आपके जो भी क्वेश्चन है आप उसको अपने पास लिख लें, और एट द एंड ऑफ सेशन हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। कुछ लोग इसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप इनको रख लें, आप एट द एंड ऑफ द सेशन आप ये दोबारा से हमसे फिर आप पूछना चाहें तो यू कैन आस्क। ओके, अभी तक सबको समझ आ गई यहाँ तक स्टडी डिजाइन की? तो हम आगे चलते हैं। आप लोग इनबॉक्स कर सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मैं उसको अभी भी रिपीट कर दूंगी, और एट द एंड ऑफ सेशन आई विल रिपीट अगेन। अब आते हैं हम सैम्पलिंग टेक्निक की तरफ। सैम्पलिंग टेक्निक में क्या है, आपके पास दो 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 तरह से हैं, आपके पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की फर्दर, सॉरी, उप्स, जी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फिर फर्दर है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये आपके नाम सामने, सिस्टमैटिक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी के ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अब इनको बारी बारी करते हैं। जब मैं आपको इनकी एग्जांपल दूंगी ना, तो आपको इसकी ज्यादा अच्छी समझ आएगी कि ये सैम्पलिंग हम किस तरह से कर रहे हैं। अब यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सैम्पलिंग करनी क्यों होती है। देखिए, आपके पास लेट्स से कि पॉपुलेशन है आपके हॉस्पिटल में 1000 के करीब, आपके पास जो है पेशेंट है, आप उनके अंदर डायबिटीज देखना चाह रहे हैं। ठीक है, कि डायबिटीज की जो प्रेवलेंस क्या है इस सारी में, ये मैं जस्ट एक सिंपल मिसाल दे रही हूँ वैसे। तो उसमें आप उन 1000 पेशेंट का डाटा लेना आपके लिए डिफिकल्ट है, तो आप कहते हैं कि मैं इसमें से 100 पेशेंट का डाटा ले लूं। आपके पास ना इतने रिसोर्सेज हैं, ना टाइम है, ठीक है, ना आपके पास इतने लोग हैं जो आपकी हेल्प करेंगे हैं सारे 1000 पेशेंट्स का डाटा लेने के लिए, तो आप उसमें 100 पेशेंट ले लेंगे, या लेट से ठीक है आप उसमें से 200 पेशेंट, 300 पेशेंट ले लेंगे और आप उनका डाटा लेंगे। अब ये जो सैंपल साइज अभी आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे तो सैंपल साइज कैलकुलेट करने के बाद आपने उन ये कैसे डिसाइड करना है कि मैं इसमें से किस पेशेंट को लूं और किस पेशेंट को ना लूं, किसको अपनी स्टडी में रखूं और किसको नहीं रखूं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं।
ये जो ऊपर है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये यूजली हम क्वांटिटेटिव स्टडीज के लिए करते हैं यूज, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम क्वालिटेटिव स्टडीज के लिए करते हैं यूज। क्वांटिटेटिव स्टडीज यानी जिसमें आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज भी आ जाती हैं और क्वालिटेटिव स्टडीज भी आ जाती है, सॉरी कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी भी आ जाती है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके पास आती है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आप करते हैं क्वालिटेटिव स्टडीज में, जैसे कि जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं, ठीक है, ये उसमें आती हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ईच मेंबर इन द पॉपुलेशन हैज द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चोजन। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी, इसको आपकी समझ आ जाएगी। हम एग्जांपल पे ही चलते हैं, ठीक है। अब ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की 4 डिफरेंट टाइप्स। अब मैं आप लोग की मिसाल लेती हूँ। इस टाइम आप लोग, मेरे पास इस टाइम कितने पार्टिसिपेंट्स है? 31, ठीक है। 31 पार्टिसिपेंट्स शो हो रहे हैं मुझे। अब आप में से 31 में से मैं लेना चाहती हूँ सिर्फ, आप में से 10 लोगों को लेना चाहती हूँ। मैं आपको कोई टास्क असाइन करना चाहती हूँ, कल आप लोगों ने ये टास्क जो है करके आना है और आप लोगों ने आगे ग्रुप में प्रेजेंट करना है। अब मैं आप में से 10 लोगों को मैं कैसे चूज करूँ कि उसमें मेरी तरफ से बायस भी ना आए और आप लोगों को भी फील ना हो कि मैडम ने मुझे चूज कर लिया या उसको क्यों चूज नहीं किया। तो इस बायस को खत्म करने के लिए मैं क्या ऐसा करूं कि बायसनेस भी खत्म हो जाए और रैंडम सैंपल नहीं हो जाए, उसमें मेरी तरफ से कोई जजमेंट, कोई मेरी अपनी चॉइस ना हो, और आप सबके पास इक्वल चांस हो कि हर किसी का चांस हो कि ही और शी कैन बी चोजन। कैसे करेंगे? आप सबके नाम में डिफरेंट पर्चियों पे लिखेंगे, लॉटरी मेथड में आंखें बंद करके 10 पर्चियां उठा लूंगी, ठीक है। और जो 10 लोग आए उनको मैं कहूंगी कि आपने ये कल टास्क किया, आपने करके आना है, ठीक है। तो अब देखें, जब आप सबके नाम पर्चियों पे लिखे गए हैं तो सबका इक्वल चांस है ना कि आप में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसमें से लेकिन चूज हमने सिर्फ 10 को करना था, तो बाकी सबका सांस बहाल हो गया कि शुक्र है हमें टास्क नहीं मिला और ये 10 लोग तो फंस गए, ठीक हो गया। तो ये है सिंपल रैंडम सैंपल। अब आते हैं सिस्टमैटिक, तो ये है, सॉरी, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और ये जो मैंने आपको लॉटरी मेथड वाली एग्जांपल दी है, इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल, ठीक है। ये आप सब लोग हैं और मैंने आप सबके, ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये, ठीक है, ये आप लोग हैं और मैंने आप सबके नाम पर्चियों पे लिखे और 10 पर्चियां उठा ली। अब कोई यहां से आ गया, कोई यहां से है, कोई यहां से है, कोई यहां से है, तो मैंने आप लोगों को टास्क साइन कर दिया। दिस इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ये है कि मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे हर तीसरे बंदे को टास्क साइन करना है। अब आप 30 हैं, 33 हो गए, तो मैं मुझे आप में से 11 लोगों को टास्क साइन करना है, तो मैं पहला छोड़ के हर तीसरे जो पार्टिसिपेंट को मैं सिलेक्ट कर लूंगी। उसमें मेरी तरफ से कोई बायस नहीं होगी फिर, ठीक है। उसमें ये है कि ये देखिए, पहला छोड़ के हर तीसरा बंदा, पहला छोड़ के हर तीसरा बंदा, एवरी थर्ड पर्सन आई विल चूज देम, ठीक हो गया। ये हो गया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड क्या होती है? स्ट्रेटिफाइड मीन्स अब आप लोग 33 लोग हैं। अब आप में से 33 में से मैं कहती हूँ कि आप में से 10 मेल हैं और बाकी जो है वो फीमेल्स हैं। अब मैं मेल और फीमेल को ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन में आप लोगों को दो स्ट्रेटा में, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रही हूँ, मेल और फीमेल में, और उसमें से मैं फिर सैंपल चूज करूंगी। आप स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ एनी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आप एज पे कर सकते हैं, वेट पे कर ले चाहे, तो ये स्ट्रेटिफिकेशन हो गई। इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपल। क्लस्टर सैंपल क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं कहती हूँ कि मैंने आप 33 लोगों में से रीमेर खान के लोग नहीं लेने, मुझे साहिवाल और मुल्तान के लोग लेने हैं। तो ये साहिवाल और ये मुल्तान के लोग हो गए क्लस्टर एक जगह, और मैंने उसमें सारे लोग लेने हैं, ठीक है। तो आप जब एक क्लस्टर डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने ये 3 जगहों के लोग लेने हैं और मैंने इस शहर के नहीं लेने हैं, तो आप उसमें से फिर जितने होंगे आप उन सबको ले लेंगे, ठीक है, अपनी स्टडी में। तो ये होगा आपका क्लस्टर सैंपल, ठीक।
अब आते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की तरफ। इसमें बहुत ज्यादा इस सैम्पलिंग टेक्निक में बहुत ज्यादा जो है बाइस्ड होती है, बहुत ज्यादा बाइस होती है, क्योंकि इसमें आप अपनी चॉइस बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और ये थोड़ी आसानी के लिए होती है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में ज्यादा होती है यूज। ठीक है, इसमें क्या है कि आप अपनी कन्वीनियंस पे भी लेते हैं। मसलन अब इसमें हर एक के पास इक्वल चांस नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि मैडम ने तो अपनी मर्जी से चूज करना है। अब आप लोग 33 लोगों में से मेरा दिल करेगा मैं जिसको भी चूज करूंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि जो मेरे सामने स्क्रीन पे ये 5 लोग नजर आ रहे हैं, मैं इनको ले लेती हूँ अपनी स्टडी में और बाकियों को छोड़ देती हूँ। अभी जो मेरे सामने 5 लोग खड़े हैं, मैंने इनको स्टडी में ले लिया, और पीछे नजर आ रहे मुझे, जो कि नजर नहीं आ रहे थे, मैंने इनको स्टडी में नहीं लिया। ठीक है, तो ये है कन्वीनियंस। जो आता जा रहा है, सामने खड़ा है, सामने है, आ ही जा रहा है, मैं उसको लिए जा रही हूँ। जो नहीं है, बाहर खड़ा है, मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं इसको नहीं ले रही हूँ। ठीक है, पर्पसिव सैंपल, इसको जजमेंट सैंपलिंग भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि मैं अब ये सोचूंगी कि नहीं, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट को नहीं लेती हूँ, मैं फोर्थ ईयर के रेजिडेंट को अपनी स्टडी में लूंगी। या उसको टास्क साइन करना था ना मैंने, तो मैं टास्क साइन करती हूँ, क्योंकि फोर्थ ईयर का रेजिडेंट सीनियर होता है, उसको तो समझ आ जाएगी कैसे करना है। फर्स्ट ईयर रेजिडेंट को भी समझ नहीं आएगी। तो ये मेरी जजमेंट है, हो सकता है फर्स्ट ईयर रेजिडेंट को ज्यादा आता हो, लेकिन ये मेरी जजमेंट है, तो मैं अपनी जजमेंट के बेस पे जिसको भी ले लूँ। ठीक है, ये जजमेंट सैंपल हो गया। स्नोबॉल सैंपल क्या है? स्नोबॉल सैंपल यूजली कॉन्फिडेंशियल स्टडीज के लिए होता है यूज मोस्ट ऑफ द टाइम। फर्ज करें कि आपने एडिक्शन के ऊपर करनी है स्टडी, या HIV पेशेंट्स, क्योंकि ये बड़े कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेसी वाली चीज है, तो इसमें हर कोई नहीं बताएगा कि उसको HIV है या वो एडिक्ट है। तो आप ये करेंगे कि आपको एक एडिक्ट का पता चल गया है, ठीक है, तो आपको दूसरे एडिक्ट का पता बताएगा, दूसरा तीसरे का पता बताएगा, इस तरह से एक दूसरे को वो जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। स्नोबॉल मतलब जैसे आप स्नोबॉल फाइट करते हैं ना, तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और फिर इस तरह से आप एक सैंपल साइज इकट्ठा हो जाएगा आपके पास। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कोटा सैंपल लास्ट। कोटा सैंपल जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि कोटा सैंपल में क्या होता है कि आप कोटा फिक्स कर लेते हैं। मसलन जब आप लोगों ने कभी कोई इंटरव्यूज दिए होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के, कभी तो आपने देखा होगा उसमें उसमें एक विमेन कोटा होता है, एक माइनॉरिटी कोटा होता है, और उसमें एक जो डिसेबल कोटा होता है, स्पेशल पर्सन कोटा होता है। ठीक है, तो एक उसमें ओपन मेरिट होता है। तो इस तरह से कोटा फिक्स होता है कि हमने इसमें से मैं कहती हूँ कि मैंने जो एज ग्रुप में से या इस क्लास में से मैंने इतने पेशेंट लेने हैं, या मैं इतना सैंपल साइज लेना है, तो मैं उस उसको फिक्स कर दूंगी कि मैंने 20% इसमें से लेना है और 30% इसमें से लेना है। ठीक है, तो दैट इज कोटा। तो यहां तक हो गया हमारा आज का सेशन खत्म।